محسن رضا نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر حکومت پاکستان، انتہائی قابل احترام وزراء ریلویز، عباسی صاحب انفارمیشن منسٹر، منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرس، اسپیشل اسسٹنٹ طلحہ برقی صاحب، چودھری طلال بھی بیٹھے ہیں، اور معزز اراکین پارلیمنٹ، مریم اورنگزیب کی والدہ محترمہ، انتہائی قابل احترام مہمانان گرامی، گورنمنٹ آفیشلز، السلام علیکم۔ آج الحمدللہ اسلام آباد میں جو انٹیریئر منسٹر اور ان کی ٹیم کے تابع ایک توسیع کا وسیع و عریض پروگرام پچھلے 1 سال سے جاری ہے، جس سے کہ یقیناً ٹریفک میں بہت بہتری آ چکی ہے۔ اسلام آباد جو کہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رب تعالیٰ کی دین ہے، ایک بہت پرفضار خوبصورت مقام ہے، اس میں مزید نکھار، شاندار بہت خوبصورت پھول آپ کو آج اسلام آباد میں ملیں گے، اور یہ جو قدرتی حسن ہے اس کو یہ دوبالا کر رہا ہے۔ میں ان تمام بہترین جو انیشیٹوز ہیں اس کے لیے محسن نقوی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اور آپ کی ٹیم، سیکرٹری انٹیریئر علی رنداوا، ان کی ٹیم، اور آئی جی پولیس اسلام آباد اور تمام جو کانٹریکٹر ہیں، وہ ایک بہت اچھے شہرت کے مالک ہیں۔ کنسلٹنٹ جو ہیں میں ان کی میٹنگ لینے والا ہوں، تاکہ نیس پاک میں جو بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے اس کے لیے میں جلد میٹنگ کروں گا انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے اس حسن میں اضافے کے لیے جو آپ کاوشیں کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر اور آپ کی ٹیم، یہ یقیناً انتہائی قابل ستائش ہے، لیکن اس میں آپ مزید اس میں دن رات اضافہ کریں تاکہ اسلام آباد گہوارہ بن جائے، پاکستان کے اندر نہیں پورے خطے میں خوبصورتی کے لحاظ سے، اور اس کا یقیناً آغاز ہو چکا ہے۔ رنگ برنگ پھول لدے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ نے منصوبہ اب شروع کیا ہے تو 60 دن کے بجائے اب محسن نقوی صاحب نے 35 دن کا اعلان کیا ہے، تو مجھے ان کی بات پہ پورا یقین ہے کہ ماضی میں اس طرح کے اعلانات کو انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے، اور یہ یقیناً نہ یہ شہباز سپیڈ ہے، یہ نہ یہ محسن نقوی سپیڈ ہے، یہ پاکستان سپیڈ ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اجتماعی کاوشوں سے پاکستان کا نام انشاءاللہ بلند ہوگا۔ پچھلے 1 سال میں اجتماعی کاوشوں کے نتیجے میں اگر پاکستان کی جو ریٹنگ اس کو اللہ تعالیٰ نے امپروو کر دیا ہے، اور فچ جو ایک انٹرنیشنل ایجنسی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہ صرف انہوں نے CCC کو کنورٹ کر دیا ہے B- میں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سٹیبل آؤٹ لک ہے۔ یہ اجتماعی کاوشیں ہیں، ٹیم ورک ہے، جس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پاکستان کی معیشت اللہ تعالیٰ نے استحکام بخشا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہم چل پڑے ہیں، نکل پڑے ہیں۔ جس طرح یہ منازل ہم نے طے کی، جس طرح یہ ہم نے
चैलेंजेस का सामना किया एक भरपूर क़ुव्वत, एतमाद और कमिटमेंट के साथ इस टीम पाकिस्तान ने, तो मैं समझता हूँ कि ये तरक्की का सफ़र भी इसी तरीके से हम इसको तय करेंगे। हमने जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए जो तोहफ़ा दिया है, कराची, कल्लात, खुशदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं, और इसके लिए जो बेंचमार्क होगा क्वालिटी, वो मोटरवे की क्वालिटी होगी। इंशाअल्लाह मैं उसको ख़ुद इसको सुपरवाइज़ करूँगा। तो ये जो फंड्स हमने जो बचत हुई है, देखिए एक मुगालता जहन से हमें निकाल देना चाहिए। हमने कोई आवाम में जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में इजाफ़ा नहीं किया। जो पिछले 15 में जो कीमतें थीं उसको मेंटेन किया है, और जो कमी जो आ रही थी उसको हमने, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं कि 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। चारों सूबों ने मिलकर और वफाक ने मिलकर, मैं उस वक्त पंजाब का खादिम था, हमने इसमें लीड ली थी, और बलूचिस्तान के हिस्से को डबल करने में पंजाब ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। मगर बलूचिस्तान के जो फासले हैं, कोयटा शहर से आप जाएं, मस्तूंग जाएं, आप खुशदार जाएं, आप चमन जाएं, आप और इलाकों में जाएं, तो मैं समझता हूं कि वो सैकड़ों नहीं हज़ारों मील के फासले हैं। तो जितने लंबे फासले होंगे, और सबसे कम आबादी बलूचिस्तान की है, तो जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया भी बलूचिस्तान का उसी हवाले से हमें देखना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम ने इस फैसले को न सिर्फ दिल से कबूल किया है, बल्कि खुशी से कबूल किया है कि हमारा एक इंतहाई अहम सूबा बलूचिस्तान। देखिए बाकी सूबों में, पंजाब में जो रोड्स का नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, सिंध में आप देखेंगे अभी कराची में उन्होंने बहुत शानदार एक हाईवे बनाई है, मुकम्मल की है, और इस तरह आप मर्दान से लेके आप जाएं सक्कर तक तो मोटरवे है, जिसमें पंजाब भी शामिल है, KP भी शामिल है, और सिंध भी शामिल है। इंशाअल्लाह अगले जो कराची तक के जो मंसूबे हैं उसके ऊपर दिन रात हम काम कर रहे हैं। मगर बलूचिस्तान को भी एक ऐसा मंसूबा चाहिए जिससे कि उससे बलूचिस्तान के अवाम की उसकी ओनरशिप हो, चाहे वो बलोच हैं या पश्तून हैं या बरोई हैं या दूसरे वहाँ पर जो हमारे वहाँ पर भाई और बहन बसते हैं। तो ये उनका मंसूबा दिल की आवाज़ थी। तो ये पूरे पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ कि यक ज़ुबान से इस मंसूबे की तायीद की है, और जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो कोता अंदेशी है, वो तंग नज़री है, क्योंकि पाकिस्तान 4 इकाइयों से मिलता है, सिंध, बलूचिस्तान, KP, पंजाब, और उसके बाद हमारे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। इन सब की तरक्की जो है वो है पाकिस्तान की तरक्की। और अगर एक सूबा आगे बढ़ता है, 2 आगे बढ़ते हैं, तो 2 पीछे रहते हैं, जो भी वजूहात है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं, वो फिर उन सूबों की तरक्की है। ये नवाज शरीफ का विज़न है, ये मेरा विज़न है, ये पाकिस्तान की पूरी जो पॉलिटिकल जो हमारी लीडरशिप है उसका विज़न है, ये हमारी मिलिट्री लीडरशिप का विज़न है कि हमें पूरे पाकिस्तान को हमें इकट्ठे आगे लेके चलना चाहिए। तो ये जो मंसूबा तोहफ़ा हमने बलूचिस्तान को दिया है वो बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ है, और इंशाअल्लाह इस मंसूबे को हम मिलकर एक बहुत ही आला क्वालिटी का, आला पाए का मंसूबा बनाएंगे, और इसको ये
जब हमने 2022-23 में इसका संग बुनियाद रखा था, उस वक़्त 214 अरब इसका तखमीना था, जो कि आज 300 अरब से बढ़ गया है। लेकिन इंशाअल्लाह इस मद में हम इस मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करेंगे और बलूचिस्तान के अवाम को इस बात का फ़ख्र उनको होगा कि ऐसी सड़क जिसको वो खूनी सड़क कहते थे, वो खुशहाली, खुशी और तरक्की की सड़क बन जाएगी, जो कि एक ज़माने में आरसीडी की सड़क वो कहलाती थी। इंशाअल्लाह जब ये बन जाएगी तो ये पाकिस्तान का एक मायनास रूट होगा, जिसमें पब्लिक भी सफ़र करेगी, ट्रैफिक भी होगी, ट्रांसपोर्ट करेंगे गुड्स को, सर्विसेज को। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। आपका सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया, और ये नया मंसूबा आपको पूरी कौम को मुबारक हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।